طويل الشوق يبقى میرے پیارے دوستو، آخر کیوں مکہ کی اس بڑھیا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک دیکھنے سے انکار کر دیا تھا؟ بڑھیا ہر روز حضور پر دھول کیوں اڑاتی تھی؟ اس دور کی بھوپستی کا عالم کیا تھا؟ کیوں وہ بڑھیا اپنا شہر چھوڑ کر چلی گئی؟ اور پھر کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بڑھیا کی مدد کی؟ یہاں تک کہ جب اس عورت نے انہیں کی شکایت انہی سے کر ڈالی تو کیا ہوا؟ ان کی ناراضگی کی اصل وجہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ واقعی میں انوکھا اور دلچسپ ہے، جو اپنے اندر اس زمانے کے ہر لمحے کو سمیٹے ہوئے ہے۔ عرب کی ویران وادیوں میں اس وقت ایک عجیب سا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مکہ کی گلیوں، بازاروں اور محفلوں میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محمد جنہیں کل تک صادق اور ضامن کہا جاتا تھا، آج وہی شخص یہ اعلان کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام سنتے ہی جیسے شادیوں، پرانی رسموں اور اندھے تبسم پر بجلی گر گئی۔ لوگ جو پیڑیوں سے بتوں کے آگے سجدے میں جھکتے تھے، اچانک کیسے پیغام سے دو چار ہوئے جس میں صاف کہا گیا ہے، یہ پتھر ہے نہ عبادت کے لائق نہ مددگار۔ اصلی مددگار تو وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جو روزی دیتا ہے اور موت اور زندگی کا مالک ہے۔ قریش کے بڑے سردار بے چین ہو اٹھے۔ ابو جہل، ابو لہب اور ان کے جیسے لوگ آپس میں بیٹھ کر طرح طرح کی سازشیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا یہ محمد ہمارے باپ داداؤں کے دین کو جھٹلا رہا ہے، دوسرا بولتا یہ تو ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے، تیسرا طعنہ مارتا بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نظر نہ آئے، کوئی تصویر نہ ہو، کوئی مورتی نہ ہو، اور پھر بھی لوگ اسے مانے۔ مکہ کی گلیوں میں ہر طرف عجیب سی گفتگو ہونے لگی۔ کوئی محفل میں ایسی نہ تھی جہاں یہ بات نہ ہوتی، کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں۔ نفرت کا ماحول دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ طعنے کستے، مذاق اڑاتے، راستے روکتے، مگر دوسری طرف کچھ دل ایسے بھی تھے جو دھیرے دھیرے حق کی طرف جھکنے لگے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ان کے دلوں میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ وہ سوچنے لگے، یہ شخص تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ اگر آج یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً اس میں سچائی ہوگی۔ اس لیے عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائی۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ یہ شروعات چھوٹی تھی لیکن اس میں سچائی کی روشنی تھی۔ ادھر مکہ کے سرداروں کی نفرت اور سختی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کبھی بیٹھ کر مشورے کرتے، کبھی نئے الزام گڑھتے۔ کوئی کہتا محمد جادوگر ہے، کوئی کہتا یہ شاعر ہے، اپنی باتوں سے لوگوں کو بتوں سے ہٹا دیتے ہیں، کوئی کہتا ان پر کسی کا اثر ہے، مگر جتنی کوششیں وہ کرتے اتنی ہی تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی دعوت ایک طرف نفرت اور طعنوں کی آگ میں جل رہی تھی اور دوسری طرف حق کی تلاش میں بھٹکتے دلوں کو ٹھنڈک اور سکون دے رہی تھی۔ مکہ کا ہر کونا اس آواز سے گونج رہا تھا، لا الہ الا اللہ۔ کچھ چہرے غصے سے لال تھے، کچھ حیرت گم تھے اور کچھ آنکھوں میں آنسو کہہ رہے تھے یہی تو سچا دین ہے۔ لیکن جتنی کوشش وہ کرتے اتنی ہی تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچ جاتا۔ اس دور کا منظر بڑا دردناک تھا۔ مکہ کی عورتیں اپنے دل کی تنہائی اور مشکلوں کا علاج بتوں کے آگے تلاش کرتی۔ کوئی لات کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتی، کوئی لات مجھے بیٹا دے دے، میرے شوہر اور بیٹیاں پسند نہیں۔ کوئی مانت کے پاؤں پکڑ کر رو پڑتی، میں تجھے روز کھجور پیش کروں گی، بس میرے گھر کی تنگی دور کر دے۔ کوئی حبل کے سامنے آہ بھر کر کہتی، میرے بیمار بچے کو شفا دے دے، مگر یہ جو بت
जो सिर्फ पत्थर के टुकड़े थे, ना किसी की आह सुनते, ना किसी की पुकार का जवाब देते। उनकी आंखें थी मगर देखती नहीं थी, कान थे मगर सुनते नहीं थे, हाथ थे मगर किसी की मदद नहीं करते, औरतें अपने अक्स बहाती, दुआएं करती, मन्नतें मांगती मगर सामने सिर्फ खामोशी रहती। इधर जब रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तौहीद की तरफ बुलाया और कहा, इन बूतों का कोई वजूद नहीं, असली मालिक वही अल्लाह है जो तुम्हें पैदा करता, रोज़ी देता और तुम्हारी दुआ सुनता। और तो औरतों का बड़ा हिस्सा बेचैन हो उठा। उन्हें लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी पसंदीदा रस्मों और बूतों से दूर करना चाहते हैं, लिहाजा बहुत सी औरतों के दिलों में आग के खिलाफ नफरत भर दी गई। मगर एक हक की रोशनी फैल रही थी। जिन दिलों में थोड़ी भी समझदारी और तलबे हक बाकी थी, उन्होंने सोचा शुरू किया, जो बूत सालों में हमारी आह सुनते ही नहीं, वे खुदा कैसे हो सकते हैं। और धीरे धीरे इन अंधरों में भी तौहीद की किरणें उतरने लगी। इन्हीं परेशानी औरतों में एक बुढ़िया भी थी, मगर उसकी परेशानी कुछ अलग थी। ये बुजुर्ग औरत उम्र के उस मोड़ पर थी जहाँ इंसान की सोच आमतौर पर नरम हो जाती है, लेकिन उसके दिल में नफरत और दुश्मनी का जहर भरा हुआ था। वो अक्सर अपने गली में, मोहल्ले में बैठकर लोगों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें सुनाती। वो बुढ़िया अक्सर लोगों से कहती, मोहम्मद से दूर रहना, ये जादूगर है, ये शायर है, ये अपने लफ्ज़ों से लोगों को बहका देता है। उसकी जुबान पर नफरत का जहर ऐसा काबिज हो चुका था कि एक दिन रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गलत बातें फैलाती रहती। उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि लोगों के इस नए दिन से दूर रखे। उसकी हालत ये भी कि जब भी कोई मुसलमान उसके पास से गुजरता तो वह ताना कसती, गालियाँ देती और कई दफ़ा तो अपने घर का कूड़ा भी उनके रास्ते में डाल देती। ये सब उसकी रोज़मर्रा की आदत बन चुकी थी। मगर ताज्जुब की बात ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसकी बातों का जवाब बुराई से नहीं दिया। जब वह गाली देती तो आप खामोशी से गुजर जाते, वह कूड़ा डालती तो आप सब्र करते और सिर्फ इतना कहते, अल्लाह उसे हिदायत दे। बुढ़िया को लगता था कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देकर अपना मकसद पूरा कर रही है, लेकिन हकीकत ये थी कि उसकी इन हरकतों से प्यारे नबी का सब्र और हुस्ने अखलाक और ज़्यादा निखर कर सामने आता। मक्का के लोग भी जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी को नुकसान नहीं करते और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। मगर तजुब और पुरानी आदि रस्मों ने बहुत से लोगों की आंखों को पर्दा डाल रखा था। वही पर्दा उस बुढ़िया की आंखों पर भी था। वह अक्सर अपने घर में बैठकर सोचती, क्या सचमुच मोहम्मद नबी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब देखती कि उसके आसपास के लोग धीरे धीरे मुसलमान होते जा रहे हैं और अल्लाह की तौहीद का इकरार कर रहे हैं, तो उसका दिल बेचैन हो उठता। उसे हमेशा ये डर लगा रहता कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मक्का में फैल गया तो उसका पुराना मजहब और रस्म और रिवाज सब मिट जाएगा। इसी खौफ की वजह से वह जितनी ताकत रखती उतनी कोशिश करती कि लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस नाम से वह लोगों को डराती है, वह वही शख्स एक दिन उसके लिए रहमत और रहबरी बनने वाले हैं। उस वक्त का मक्का मौज़ूमा में की फ़िज़ा का मंजर बड़ा अजीब था। काबा शरीफ की मुक़द्दस पर जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए बनाया था, मगर अब उसके चारों तरफ बूतों की बहरमार हो चुकी थी। 360 से ज़्यादा वहाँ बूत सजे हुए थे, कोई लकड़ी का, कोई पत्थर का, कोई सोने का और कोई चांदी का। लोग दूर दूर से आते, इन बूतों के सामने झुकते, हाथ फैलाते और अपनी परेशानी सुनाते। औरतें अपने बच्चों का हाथ पकड़कर आती, किसी के गले में ताबीज़ बांधा होता, कोई अपने बीमार बच्चे की गोद में उठाए आती, कोई आंखों से आंसू बहाती, पत्थर की मूर्तियों के सामने गिड़गिड़ाती, मेरी बेटी बीमारी दूर कर दे, कई दिनों से दवा का असर नहीं हो रहा है, तू बड़ा ताकतवर है, मेरी मदद कर। पास खड़ी दूसरी औरत झुक कर कहती, ए मन्नत, मेरे शोहर के कारोबार में बरकत डाल, रोज़ाना घाटा हो रहा है, बच्चों का पेट पालना मुश्किल हो गया। मर्द भी अपनी परेशानी इन्हीं बूतों के आगे बयान करते। एक आदमी जिसने अपनी ऊँटनी खो दी थी रोता हुआ कह रहा था, ए बल्कि तू बड़ा कारगाज है, मेरी ऊँटनी ढूंढ दे वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये सब लोग अपनी तकलीफ़ें इन पत्थरों के सामने बयान कर रहे थे, लेकिन बूत खामोश
کھڑے تھے, ان کی آنکھیں بنی تھی مگر دیکھتی نہیں تھی, ان کے کان تراشے گئے تھے مگر سنتے نہیں تھے, ان کے ہاتھ اور پاؤں گڑے ہوئے تھے مگر کسی کے کام کے نہیں تھے, مگر لوگ اپنے یقین کے دھوکے اور پرکھوں کی اندھی رسموں میں ڈوبے ہوئے تھے. انہیں لگتا تھا کہ یہی ان کے معبود ہیں, یہی ان کی مشکلیں حل کریں گی. اسی ماحول میں جب رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ کا دل تڑپ اٹھا. آپ نے دیکھا کہ اللہ کی سب سے زمین کی مخلوق کا انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ ان بے زبان پتھروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے. آپ کی آنکھوں میں رحمت بھر آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بلند مگر نرم آواز میں لوگوں کو پکارا اور فرمایا, اے لوگو, میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ پتھر تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. کیا تم اس چیز کو اپنا خدا مانتے ہو جسے تم نے اپنے ہی ہاتھوں سے تراشا ہے؟ بھیڑ ایک دم ٹھہر گئی. لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا, کچھ حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے, کچھ غصے میں لال, لیکن آپ کا لہجہ اتنا پرسکون تھا کہ بہت سے لوگ چپ چاپ سننے لگے. آپ نے قرآن کی آیتیں سنائی, ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے, اللہ کی عبادت کرو. پھر اپنے فرمایا, تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, وہی تمہیں روزی دیتا ہے, وہی تمہیں زندگی اور موت دیتا ہے, جب تم بیمار پڑتے ہو شفا بھی وہی دیتا ہے, جب آسمان سے بارش رک جاتی ہے وہی پانی برساتا ہے, جب تم تنہا ہو کر مدد کے لیے پکارتے ہو تو وہی سنتا ہے. تو کیا تم ان پتھروں سے امید رکھتے ہو اور اپنے اصل خالق کو بھول جاتے ہو؟ بھیڑ میں ایسے ایک آدمی گستاخی کرتے ہوئے بولا, محمد, کیا تم ہمیں اپنے باپ داداؤں کی دین چھوڑنے کو کہتے ہو؟ یہ بتوں تو ہماری صدیوں کی وراثت ہے, انہی نے ہمیں بچایا ہے. ایک عورت غصے میں بولی, یہ تم ہماری حفاظت کرتے ہیں آئے ہیں, ہم انہیں کیسے چھوڑ دیں؟ مگر کچھ سادہ دل لوگ جب آپ کی باتیں سنتے تو ان کے دل کانپ اٹھتے. انہیں محسوس ہوتا کہ یہ الفاظ انسانی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کی آنکھوں سے پردے ہٹنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی سے کہا, میں تم سے نہ کوئی دولت مانگتا ہوں, نہ کسی طرح کا انعام چاہتا ہوں. میرا کام صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دوں. جو اس دن کو قبول کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. بھیڑ میں خسر ہونے لگی. ایک نوجوان بولا, ان کی باتیں دل کو چھو جاتی ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے. مگر اس کے باپ نے ان سے ڈانٹ دیا, چپ, اور اس سے کہا, چپ رہے, محمد کے جادو مت آ. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی حکمت اور نرم لہجے میں فرمایا, میں تمہیں مجبور نہیں کرتا, ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. مگر سوچو, جب تم یہاں آ کر ان پتھروں سے دعا کرتے ہو اور جب نہیں ملتا تو کیا نہیں اس اللہ سے مانگتے جس نے پیدا کیا؟ لوگ پھر چپ ہو گئے. ان کی آنکھوں میں سوال تھا, دلوں میں ہلچل تھی. کچھ چہرے پر غصے کی لالی تھی مگر کچھ دلوں میں روشنی اترنے لگی تھی. یہی اسلام کی دعوت کا اثر تھا جو پتھر کے سامنے جھکے انسانوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیتا تھا. کیا سچ مچ ہمارا اصلی رب یہی بت ہے یا کوئی اور ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے, ہماری آواز سن رہا ہے؟ مکہ کی وہ بڑھیا اب اور بھی پریشانیوں میں گر گئی. پہلے تو وہ دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھڑ اگلتی, لوگوں کو ڈراتی دھمکی دیتی اور کہتی, محمد سے دور رہنا, وہ جادوگر ہے, وہ دھوکہ دیتے ہیں. لیکن اب حالات بدلنے لگے تھے. اس کے اپنے گلی کے کوچے میں وہ لوگ جو کل تک اس کی طرح بتوں کے سامنے جھکتے تھے اب کھلے عام کہنے لگے, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں, ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو نظر تو نہیں آتا مگر سب کو دیکھتا ہے, سب کی سنتا ہے. یہ سن کر بڑھیا کا تو دل کانپ اٹھا. اسے محسوس ہوتا کہ اس کا اکیلا پن بڑھ رہا ہے. رات کے سناٹے میں وہ اپنے گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی, مٹی کے دیے کی ہلکی روشنی اس کی جھریے والے چہرے پر پڑتی. وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بھرتی اور سوچتی, یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سچ مچ محمد کے پاس کوئی جادو کی لوگ ایک ایک کر کے ان کے پاس کھینچے چلے جاتے ہیں؟ کل تک میری پڑوسن جو ہر وقت بتوں کے سامنے جھکی رہتی تھی اب کہتی ہے میں صرف اللہ کو مانوں گی. اور وہ جوان لڑکا جو حبل کے نام کی قسم کھایا کرتا تھا سب کے سامنے اعلان کر چکا ہے, اب میری قسم صرف اللہ کے نام کی ہوگی. یہ سب دیکھ کر بڑھیا کا دل ہل جاتا. وہ کانپتی اور کہتی, اگر یہی حال رہا تو ایک دن میں اکیلی رہ جاؤں گی. اس رات وہ
सो न सकी, करवटें बदलती रही। कभी उसे अपने बेटे की याद आती जब वह बचपन में बीमार पड़ता था और वह हुबल के सामने जाकर गिड़गिड़ाती थी। उसके दिलों में आता कि अगर हुबल की मेरा रब है तो मेरी दुआ क्यों असर ना करी सकी। मेरा बच्चा तो दवा से ठीक हुआ था। लेकिन फिर वो फौरन उस ख्याल को झटक देती और जिद में कहती, नहीं, ये मेरे बाप दादाओं का दीन है, यही सच है। मगर अब उसका यकीन डगमगाने लगा था। सुबह होते ही उसने एक फैसला कर लिया, अब मैं मक्का में नहीं रह सकती। यहाँ तो मोहम्मद का असर बढ़ रहा है, लोग दिन ब दिन मुसलमान हो रहे हैं। अगर मैं यही रहती तो शायद एक दिन मैं भी उनकी बातों में आ जाऊँगी। बेहतर यही है कि मैं ये शहर छोड़ दूँ, कहीं और चली जाऊँ जहाँ लोग अब भी अपने बूतों को मानते हों। यही सोचकर गुड़िया ने अपना सामान बांधना शुरू किया, मगर दिल में एक अजीब सा बोझ था। उसने मन ही मन कहा, जाने से पहले मुझे अपने खुदा हुबल के पास जाकर जाना होगा। उसे अपनी हालत बतानी होगी। उसे कहना होगा कि मैं उसे जुदा होकर जा रही हूँ। वह अपने घर से निकली, थके कदमों से भारी दिल लिए धीरे धीरे काबा के पास पहुँची, जहाँ हुबल का बड़ा सा बूत रखा हुआ था। उसकी चाल लड़खड़ाई हुई थी, चेहरे पर थकान और दिल में बेकरारी साफ नजर आ रही थी। आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो हुबल के सामने जाकर झुक गई, सजदा किया। उसके होठों कांप रहे थे और आंसुओं से चेहरा भीग गया। उसने पुकारा, है मेरे हुबल, तू ही मेरा खुदा है। मैं तुझे मानती हूँ, तुझे पूजती हूँ और किसी को नहीं मानती। मगर अब मैं मजबूर हूँ। इस शहर में एक नौजवान मोहम्मद आया है जो कहता है कि एक खुदा है जिसकी ना कोई मूरत है ना कोई तस्वीर। उसके अल्फाज ने बहुत से लोगों को अपने साथ में मिला लिया है। मैं देख रही हूँ लोग तेरे सामने आना छोड़ चुके हैं। वह मोहम्मद के कहने पर उस खुदा का नाम ले रही है जिसने हमें कभी देखा ही नहीं। ए हुबल, तू ही बता मैं क्या करूं? उसने दोनों हाथ उठाए रोते हुए कहा, ए मेरे बूत, मैंने अपनी सारी उम्र तुझे माना, मैंने तुझे खजूर चढ़ाए, अपनी मुश्किलें में तुझे पुकारा, मगर अब देखती हूँ कि लोग मोहम्मद की तरफ भाग रहे हैं। मेरा दिल टूट जाता है। मैं तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मैं इस शहर में रहती तो शायद मेरे बच्चे भी मोहम्मद का दीन अपना लेंगे। इसलिए मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ, मगर दिल से तुझसे जुदा नहीं हो सकती। मैं तुझसे ही अपना खुदा मानती रहूँगी, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊँ। वो देर तक बूत के सामने बैठी रही, आंसू बहाती रही। कभी अपना सर झुकाकर पत्थर को देखती, कभी दिल पर हाथ रखकर कहती, है मेरे माबूद, तू मुझे अकेला मत छोड़ना, तू मेरी मदद करना। मगर वह सिर्फ सन्नाटा था। कोई आवाज़ न आई, ना कोई सहारा मिला। पत्थर की आंखें उसी की तरफ जमी थी, लेकिन उनमें कोई नूर नहीं था। पत्थर की जुबान बंद थी। गुड़िया बहुत देर तक अपने ख्यालात में डूबी रहती। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। एक तरफ उसका पुराना यकीन, उसकी आदतें, उसके बाप दादाओं का विरासत, और दूसरी तरफ वो बेचैनी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज उसके कानों तक पहुंचकर उसके दिल को हिला चुके थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि सच्चाई कहाँ है, मगर आखिर उसने खुद को तसल्ली दी, नहीं, मैं वही मानूंगी जो अब तक मानती आई हूँ। मोहम्मद चाहे जितने लोगों को अपने साथ ले ले, मगर मैं तुझसे वफादार रहूँगी। आखिरकार वह उठी, अपने आंसू पोंछे और थके कदमों से वापस अपने घर लौट गई। लेकिन उसके दिल में बेचैनी अब भी बाकी थी। उसने पक्का कर लिया था कि वह मक्का छोड़ देगी। उसे लगता था कि ये शहर अब उसके लिए नहीं रहा। ये मोहम्मद का असर बढ़ रहा था और उसके बहुत कमज़ोर हो रहे थे, और वह ये मंजर अब और नहीं से देख सकती थी। मक्का उस द्वार में सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि अरब का सबसे बड़ा मजहबी और कारोबारी मरकज़ था। काबा शरीफ के चारों तरफ 360 से ज़्यादा बूथ रखे गए थे, और हर कबीला में बूथ को वहाँ मौजूद देखकर फ़ख्र महसूस करता था। यही वजह थी कि साल के अलग अलग दिनों में छोटे बड़े बाज़ार लगते, दूर-दराज से लोग आते। ये सिर्फ इबादत का मंजर नहीं होता, बल्कि तिजारत का भी बड़ा मौका बन जाता। सुबह का वक्त था। मस्जिद हरम पास के मैदान शोरे शराबे से गूंज रहा था। दर गुजर से आने वाले काफिले अपने ऊँटों, बकरियों और सामान लेकर पहुंच चुके थे। बाजार सज चुका था। कपड़ों की दुकान पर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे। इत्र बेचने वाले शीशियाँ खोलकर राहगीरों को सुंघा रहे थे। अनाज और खजूर की बोरियां ऊँटों से उतरती जा रही थी। छोटे छोटे बच्चे पानी के मटके बेच रहे थे, और औरतें ताज़ा पकाया हुआ खाना लाई। भी भीड़ में एक खास चहल पहल थी। लोग काबा की तरफ जाते और अपने साथ खजूर, तेल, दूध और कभी कभी जानवर लेकर जाते। ये सब बूतों की नज़र किया जाता। बाहर से आने वाले ज़ाहिरीन
अपनी जेब से पैसे खर्च करते और मक्का वाले दुकानदार दिल ही दिल में यही सोचते, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ज़्यादा हमारी कमाई होगी। एक दुकानदार जो हुबल के सामने चढ़ाने के लिए छोटी छोटी मूर्तियाँ और तावीज़ बेचता था। भाई, अगर ये मोहम्मद अपनी बातें फैलाने में कामयाब हो गए तो हमारा कारोबार ठप हो जाएगा। लोग अगर कहने लगेंगे कि कोई भूत नहीं है तो ये खजूर, ये तावीज़, ये तेल किसे बेचेंगे? उसका दोस्त हंसकर बोला, अरे लोगों के दिल से भूतों का नाम कौन निकाल सकता है? ये रस्में बहुत पुरानी हैं। मोहम्मद अकेले क्या कर लेंगे? मक्का के लोग कभी कभी इनके बहकावे में नहीं आएंगे और हमारा कारोबार कभी ठप नहीं होगा। पहला दुकानदार कुछ सोचता हुए बोला, अरे भाई, लेकिन कुछ लोगों तो मोहम्मद की बातों में आकर उस नज़र न आने वाली अल्लाह को मान रहे हैं। सुना है उसकी दीन में ज़्यादा आसानियाँ हैं। ये सुनकर दूसरा दुकानदार गुस्से में गिरजा और चुप रहे, वरना तुझे ही यहीं गाड़ दूंगा अगर तूने मेरे सामने मोहम्मद या उसके दीन की तारीफ़ की। पहला शख्स डर गया, चुप हो गया और वापस अपना सामान बेचने लगा, मगर उसके दिल में कहीं ना कहीं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातों का असर उतर चुका था। इधर बाज़ार में औरतें भी खरीदारी कर रही थी। एक औरत ने अपने बेटे का हाथ पकड़ कर कहा, चलो हुबल के लिए अच्छा सा इत्र खरीदते हैं। मासूम बच्चा सीधा बोला, अम्मी, मोहम्मद कहते हैं कि ये भूत कुछ नहीं कर सकते। औरत ने फ़ौरन झुकते हुए कहा, चुप, ऐसी बातें मत करना, लोग हमें बुरा कहेंगे। हमारा सब कुछ हुबल ही है, अगर वह नाराज़ हो गया तो हम पर मुसीबत आ जाएगी। इधर उस बुढ़िया का हाल कुछ अजब सा था। उसके दिल में तसल्ली थी। उसने हुबल के आगे रो रो कर अपनी बात कह रख दी। वह बार बार सोचती, अब मेरा खुदा हुबल मोहम्मद और उनके साथियों को मिटा देगा। मजहब अल्लाह उनकी दावत को दबा देगा, उन पर आसमान की बिजली गिराएगा, कोई आफत आएगी और सब ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए ये ख्याल जैसे एक मरहम था। हर बार जब उसे खबर मिलती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से लोग मुतासिर हो रहे हैं तो उसका दिल डर कर काँप उठता, मगर फ़ौरन अपने गुमान तसल्ली कर लेती, नहीं, हुबल ये मेरा है, ना मेरा खुदा है, वो ज़रूर उनकी राह रोक देगा। बुढ़िया के दिल में नफ़रत का जहर भरा था। उसे नफ़रत को उसने अपने बूतों के हवाले कर दिया था। उसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अजनबी और ख़तरनाक लगता था, जबकि उसके टूटे हुए यकीन का सहारा वही बूत बने हुए थे। उसे ये मालूम ना था कि पत्थर के बूत किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असल हक्का का सूरज तो अब उभर चुका था और उसकी रोशनी की कोई पर्दा छुपा नहीं सकता। इधर मस्जिद हरम के साए में लोग बूतों के सामने लंबी कतारों में खड़े थे। कोई बकरा चढ़ा रहा था, कोई खजूर और दूध रख रहा था, तो कोई अपने हाथों से पत्थर तेल मल रहा था। मक्का में सरदार ये नाराज़ देखकर अपने दिल में तसल्ली महसूस करते। उन्हें लगता कि जब तक ये भीड़ लगी रहेगी उनका कारोबार और उनकी इज्जत दोनों बरकरार रहेंगे। लेकिन इस भीड़ में कुछ ऐसे भी थे जिनके दिल में सवाल उठ रहा था कि एक नौजवान अपने दोस्त से धीरे से कह रहा था, क्या तुझे नहीं लगता कि ये पत्थर हमें कभी जवाब नहीं देते? हम सालों से इनके सामने झुकते हैं, मगर हमारी मुश्किलें वहीं की वहीं हैं। उसका दोस्त बोला, ये सब हमारे पुरखों की रस्में हैं, इन्हें छोड़ना आसान नहीं। नौजवान ने धीमे लहजे में कहा, कल मैंने मोहम्मद की बातें सुनी। वह कहते हैं कि एक अल्लाह है जो नज़र तो नहीं आता मगर वही सब कुछ करता है। उनके अल्फाज मेरे दिल को उतर गए। उसका दोस्त घबरा कर बोला, बस कर, लोग सुन लेंगे तो पत्थरों से मार डालेंगे। दूसरी तरफ दुकानदारों की आंखों में सिर्फ मुनाफा था। एक आदमी जो दूर से आया था, उसने अपने बेटे की शादी के लिए मन्नत के आगे चढ़ावा रखा। दुकानदार ने उसके कान में कहा, अगर और चीज़ें खरीदे और चढ़ाओगे तो तुम्हारी दुआ जल्दी पूरी होगी। वह शख्स और भी सामान खरीद लाया। इस तरह चढ़ावे और सामान की खरीदारी फरोख्त का सिलसिला चलता और मक्का के वाले इसी में अपनी रोज़ी तलाश करते। इस भीड़ और कारोबार के बीच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत भरा दिल दुखता था। आप देखते थे कि अल्लाह का घर जिसे सिर्फ तौहीद के लिए बनाया गया था, आज कारोबार और बूत पस्ती का मरकज़ बन गया। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते और मौके की तलाश रहते कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की भी बड़ी तकलीफ़ थी कि अल्लाह के बनाए लोग एक बेज़बान पत्थर को खुदा मान बैठे। उस
وقت مکہ کے سرداروں کو سب سے بڑا ڈر یہی تھا کہ اگر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان لیں گے اور بتوں کو چھوڑ دیا تو یہ سارا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ اس لیے وہ لوگوں کو اپنے زیادہ بتوں سے جوڑنے کی کوشش کرتے۔ کوئی کہتا حبل بہت طاقتور ہے، اس کی پوجا ضرور کرو، کوئی کہتا منت ہماری حفاظت کرتا ہے، اور یوں ہی ہر بت کے نام پر لوگ ٹھگے جاتے اور ان کے پیسے بہتے چلے جاتے۔ مگر اللہ کا نور دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا۔ کچھ لوگ بھی اب بھیڑ میں چھپ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کرتے۔ ان کے دلوں میں سوال اٹھتا، کیا سچ مچ ہمارا رب یہ پتھر ہے یا وہ اللہ ہے جس کا ذکر محمد کرتے؟ کئی دن بیت چکے تھے مگر بڑھیا کی دعا اب تک قبول نہ ہوئی تھی۔ وہ پریشان تھی۔ آخر حبل نے کیا محمد اور ان کے ساتھیوں کو بجلی نہ گرائی؟ معاذ اللہ! پھر اس نے اپنے دل کو تسلی دی، ضرور محمد جادو سے بچ گئے ہوں گے، ورنہ حبل میری دعا کبھی ٹال نہیں۔ جاہل بڑھیا جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اب تک نہیں دیکھا تھا، بس لوگوں سے یہی سن کر جیتی تھی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جی بھر کر دیکھ لے وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ اسے وہ علم تھا کہ آنے والی امت اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیکھے ہی اتنی محبت کرے گی جو اپنے آپ میں بے مثال اور انوکھی ہوگی۔ اس نفرتی بڑھیا نے اب پکا فیصلہ کر لیا، مجھے مکہ چھوڑنا ہی ہے۔ رات بھر وہ جاگتی رہی، اپنا چھوٹا سا سامان دوبارہ باندھا، ایک پرانا بستر، کچھ برتن، تھوڑے سے کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے، سب اس نے ایک گٹھری میں باندھ دیے۔ اس کا چہرہ تھکا ہوا تھا مگر دل میں اور زیادہ تھکان تھی، اس کے ہونٹ بدبدا رہے تھے۔ اب اس شہر میں میرا کیا رہا؟ محمد کی باتوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہیں، آج نہیں تو کل ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور اگر میں یہیں رہی تو کہیں میں بھی ڈگمگا نہ جاؤں۔ صبح کی ہلکی دھوپ نکلی، بڑھیا اپنی گٹری گھسیٹتے ہوئے گھر کے باہر آئی اور چوکھٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ تھی اور دل میں بے چینی۔ وہ بار بار ادھر ادھر دیکھتی، شاید کوئی مزدور یا راہگیر مل جائے جو اس کا سامان اٹھا لے اور اسے مکہ سے باہر پہنچا دے۔ ایک عورت جو عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکی تھی اتنی دور اکیلے سفر کیسے کرتی؟ یہی سوچ کر وہ آہ بھرتی، لیکن اس کے دل میں ایک اور درد تھا، نئی جگہ جا کر میں کس کی دعا مانگوں گی؟ یہاں تو حبل میرا سہارا تھا، میں اس کے سامنے رو لیتی، اس کے پتھر کو چھو کر اپنا غم کہہ دیتی، لیکن وہاں تو حبل نہیں ہوگا، میری مدد کون کرے گا؟ اپنی پریشانیاں کس سے کہوں گی؟ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنی گٹری پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، اے میرے حبل، میرے تجھ سے جدا ہو کر جا رہی ہوں مگر تو مجھے مت چھوڑنا۔ اسی بے چینی میں وہ چوکھٹ پر بیٹھی تھی کہ اچانک سے سامنے ایک شخص گزرا۔ اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں رحمت اور دل میں سکون، اور کوئی نہیں بلکہ سرور کائنات ام الانبیاء سردار اشرف الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد رحمت عالم نبی آخری جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فروز تھے۔ وہ نورانی چہرہ، وہی صفات والا دین، وہی سچائی، وہ لبریز زبان، مگر بڑھیا انہیں پہچانتی نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم اور سکون آواز میں پوچھا، اماں تم یہاں بیٹھی ہو، کہیں جانا ہے؟ آپ کو یہ سامان کہاں لے جانا ہے؟ بڑھیا نے تھکی ہوئی نگاہ سے اوپر دیکھا، ایک پل کے لیے وہ اس چاند سے خوبصورت روشن چہرے کو دیکھ کر گم ہو گئی۔ سبحان اللہ اس کے دل سے نکلا، پھر سر جھٹکا کر بولی، بیٹا میں مکہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، یہاں اب میرا جی نہیں لگتا، بس کیا کہوں، مجھے محمد اور ان کے ساتھیوں سے دور جانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ بڑھیا کچھ لمحے ٹھہر کر بولی، مگر میرا سامان اٹھانے والا کوئی مزدور نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارا سامان اٹھا لوں۔ بڑھیا حیران ہو کر پوچھنے لگی، کیا تم مزدور ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے جواب دیا، ہاں میں تمہاری مدد کر دوں گا، تمہارا بوجھ اٹھانا ہی میرا کام ہے۔ بڑھیا نے تھوڑی دیر انہوں نے غور سے دیکھا، چہرے پر سچائی، آنکھوں میں صفات، مگر اس نے پہچانا نہیں کہ یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے وہ ہمیشہ نفرت جتاتی آئی تھی۔ اس نے سوچا، اگر یہ مزدور ہے تو کتنا نیک ہے اور شریف ہے کہ بنا کچھ مانگے میرا سامان اٹھانے کو تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی جھجک کے اس کی گٹری اٹھائی اور اپنے سر پر رکھ لی۔
बुढ़िया चुपचाप उठी और उस चलने लगी। रास्ता लंबा था, उसने कदम थके से चले थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और मोहब्बत से उसके साथ साथ चल रहे थे। ये रूहानी मंजर कुछ ऐसा था जैसे नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान मेरे नबी के दम से आबाद हो गई हो। सुभान अल्लाह। बुढ़िया बार बार हुजूर के चेहरे मुबारक को देखती और दिल ही दिल में सोचती, कितना हसीन है ये नौजवान। जो सच्चाई और ईमानदारी उसके दिल में है वही इसकी आंखों में भी झलकती है। भला आज तक ऐसा नौजवान मैंने कभी ना देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश थे। आखिरकार बुढ़िया से रहा ना गया। उसने रास्ते में कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। तुम्हारा चेहरा रोशन है और लहजा इतना नरम कि दिल को सुकून मिलता है। मगर सुनो, मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहती हूँ। उसकी आवाज़ में नफ़रत और डर मिला हुआ था। इस शहर में एक नौजवान, उसका नाम मोहम्मद है। वह लोगों को बहकाता है और कहता है कि एक ही खुदा है जिसकी कोई मूरत नहीं, कोई तस्वीर नहीं। भला तुम ही बताओ, मैं हुबुल को कैसे खुदा ना मानूं? मैंने दर्द और तन्हाई में उसी को पुकारा है, वही मेरा सहारा है। और ये मोहम्मद की उनकी बातें अजीब हैं। वो ऐसे खुदा की बात करता है जो ना दिखाई देता है। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, मैं परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने मक्का ही छोड़ दिया। मगर हुबुल को छोड़ना आसान ना था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम्हें पता है बेटा, लोग उसकी बातें मान रहे हैं और हमारे बूतों से दूर जा रहे हैं। मेरी पड़ोसन जो कल तक हुबुल को खजूर चढ़ाया बिना खाना न खाती थी, अब उसकी तरफ देखती तक नहीं। इसलिए मैंने अब तक मोहम्मद का चेहरा भी नहीं देखा। बस उन पर मिट्टी और कंकड़ फेंकती रही, इस डर से कि कहीं मैं उनके जादू में ना आ जाऊं। फिर उसने झुक कर कहा, तुम उनसे दूर रहना, उनका चेहरा कभी ना देखना, वरना तुम भी उनकी बातों में आकर अपना पुराना दीन छोड़ दोगे। उसने मुस्कुराकर हुजूर को देखा और कहा, तुम तो कितने प्यारे और नेक इंसान लगते हो। तुम्हारी वालिदा ज़रूर एक आला दर्जा की खातून होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुप रहे। आपके होठों पर हल्की मुस्कान थी, मगर आपने कोई जवाब न दिया। आपका अखलाक ही आपकी पहचान था। आप बोझ उठाए चलते रहे और बुढ़िया अपनी नफ़रत के आलम में बातें करती रही। यही वह हुस्ने अखलाक था जिसने बाद में उसी बुढ़िया का दिल बदल दिया। सफ़र लंबा था, रास्ते में धूल उड़ रही थी, सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना थके बुढ़िया का बोझ उठाए हुए थे। हर कदम पर उनका नूरानी चेहरा और ज़्यादा चमक रहा था। बुढ़िया धीरे धीरे चल रही थी, कभी ठहरती, कभी लंबी सांस लेती, और इस पूरे सफ़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना शिकायत की ना थकान का इजहार। बुढ़िया बार बार सोचती, ये नौजवान कितना सच्चा और नेक है। मैंने तो इसे मजदूर समझा था, मगर ये तो हर मामले में सबसे अलग है। ना ये काम रकम मांगता है, ना गुस्सा करता है। मैंने तो इसे रास्ते भर नसीहतें दी कि मोहम्मद से दूर रहना, मगर इसने मेरी एक भी बात काटी नहीं। क्या ऐसा इंसान आज के मक्का में मिल सकता है? जब मंजिल करीब आई तो बुढ़िया का दिल बेचैन होने लगा। उसके अंदर एक अजीब सा जज्बा पैदा हुआ। उसे महसूस हुआ कि इस नौजवान की शख्सियत कोई आम नहीं। उसकी आंखों में चमक थी, उसकी चाल में सुकून और उसकी खामोशी में असर। आखिरकार उसने हिम्मत करके पूछा, बेटा मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोग देखे, मज़दूर भी, नौजवान भी, लेकिन आज तक किसी ने मेरा बोझ इतनी खामोशी से नहीं उठाया। तुमने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया, ना बुरा माना, ना उल्टा कहा। तुमने मुझसे एक दरहम भी ना मांगा, ना कोई शर्त रखी। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा सब्र, ये सब देखकर मैं सोचने लगी हूँ कि तुम कौन हो। बताओ तुम्हारा नाम क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके लबों पर हमेशा सच्चाई और रहमत होती थी, रुक गए। उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा और बड़ी नरमी से मुस्कुराते हुए फरमाया, अम्मा मैं वही हूँ जिसका नाम तुमने पूरे रास्ते लिया। मैं ही मोहम्मद हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सुनते ही बुढ़िया भौचकी रह गई। उसका चेहरा जर्द हो गया, उस सांस भरी होने लगी। उसने घुटती और ज़मीन पर गिरा दी और अचानक ज़ोर से चीख
पड़ी, तुम ही मोहम्मद हो, वो मोहम्मद जिससे मैं नफरत करती थी, जिनके बारे में लोगों को आगाह करती थी। मैंने तो तुम्हारे खिलाफ पूरी ज़िंदगी बातें की और तुम ही बुरा बोझ उठाकर यहाँ तक लाए। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, होंठ काँप रहे थे, आवाज़ भर आई थी। उसने दोनों हाथ सिर पर रख लिए और रोते हुए कहने लगी, हाय मैंने क्या किया, मैं किसको झूठ कहती रही, किसको जादूगर समझती रही, और आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि असली सच्चा कौन है। उसकी आवाज़ काँप रही थी मगर दिल में यकीन से भरा था। अगर तुम मोहम्मद हो तो फिर यकीनन तुम्हारा दीन ही हक सच्चा है। तुम्हारा अखलाक ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो तुमसे नफ़रत की मगर तुमने बदले में मुझे सिर्फ मदद और रहमत दी। मैंने गालियाँ दी और तुमने मेरे लिए बोझ उठाया। मोहम्मद सच्चाई इसी का नाम है। वो बुजुर्ग औरत ज़मीन पर बैठ गई और बिखल कर रोने लगी। उसके आंसू धूल में मिलते जा रहे थे। उसकी चीखों में अफसोस भी था और यकीन में भी। उसने कहा, आज मुझे मालूम हो गया कि भूत पत्थर है, वे कुछ नहीं कर सकते। असली मददगार वही है जिसने तुम्हें भेजा है, वही खुदा जिसका तुम नाम लेते हो, और वही सच्चा है जिसने तुम्हें इस दुनिया में रहमत बनाकर भेजा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ नरमी से देखा। आपकी आंखों में रहमत थी, निगाहों में सब्र था। आपने ना इसके पुराने इल्ज़ाम याद दिलाए, ना उसके ताने, बस खामोशी से खड़े रहे जैसे एक रहनुमा अपनी उम्मत का इंतज़ार में खड़ा हो। बुढ़िया ने अपने आंसू पोंछे और कांपती हुई आवाज़ में कहा, मुझे अपने दीन में शामिल कर लो। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तसल्ली दी। उसे कांपते हुए हाथों से थामा और नरम लहजे में फरमाया, अल्लाह तुझे हिदायत दे चुका है, तेरे गुजरे हुए गुनाह माफ़ कर दिए। अब तेरा सफ़र नई ज़िंदगी का सफ़र है। बुढ़िया रोते हुए इनके कदमों में गिर पड़ी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको गालियाँ दी, आपके बारे में बुरी बातें कहीं, आपने बूतों से आपके खिलाफ़ दुआएं मांगी। मैं तो अनजाने में गुमराह हो गई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, इस्लाम से पहले का सब कुछ अल्लाह को माफ़ कर देगा। अब तेरा दिल तौहीद रोशनी से भर गया, अब तेरा रास्ता आसान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज ने बुढ़िया के दिल को सुकून दिया। उसके चेहरे पर पहली बार इत्मीनान की मुस्कान आई। वो बोली, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, मैं तो सोच रही थी कि मक्का छोड़ दूँ, मगर अब समझ गई कि असल हक तो आपके पास है। अब मैं मक्का लौटूंगी और औरतों से कहूँगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं। वह मक्का लौटी, वही औरतें जो कुछ सात बूतों के पाँव पकड़ कर दुआएं करती थी, अब उसके पास जमा हो गई और हैरत से पूछने लगी, अम्मा तुम लौट आई, सुना है तुमने हुबुल को छोड़ दिया है, ये कैसे हुआ? और तुम तो मोहम्मद के दीन को अपनाने को तैयार ना थी, हमने भी उनसे दूर रहने को कहती थी। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने तो उन मोहम्मद अलैहि वसल्लम को देखा है जिनकी मैं गुमराही में बुरा भला कहती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, मैंने उनका अखलाक देखा, उनका सब्र देखा। वे कभी भी किसी का पर गुस्सा ना करते, कभी धोखा नहीं देते। वो मेरे मजदूर बन गए थे, मेरे सामान उठाकर बिना किसी सिक्के के इतना सफ़र किया। मैंने सफ़र भर उन्हें परखा है। अगर कोई सच्चा है तो वही है, और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। औरतें हैरान रह गईं। कोई कहती, अम्मा तुम सोच बोल रही हो? बुढ़िया जवाब देती, हाँ मैं झूठ नहीं कहती। अगर तुम चाहो तो जाकर देख लो। वो किसी मज़दूर की तरह सामान उठाते हैं, बुजुर्ग के पास बैठते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं, दुश्मनों को माफ़ करते हैं। क्या ऐसा सच झूठा हो सकता है? सब औरतों ने एक आवाज़ में कहा, नहीं, हम उन पर ईमान लाते हैं। दूसरी तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का वालों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत डाल रहे थे। इस नए दिन को लेकर उस द्वार के सरदार सबसे ज़्यादा परेशान थे। वो किसी न किसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की साजिशें रचाते, मगर अल्लाह के महबूब के साथ उनके हर कदम पर अल्लाह का खुद मौजूद था। भला इस्लाम का परचम कैसे ना बुलंद होता। धीरे धीरे मक्का की दूसरी औरतों के दिलों में भी हलचल मच गई। अब वह बुढ़िया को जो कल तक उबुल
से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुआएं मांगती थी। हर गली हर चौपाल में कहती, मुझे मोहम्मद अलैहि वसल्लम से नफ़रत थी, लेकिन उनकी रहमत ने मेरे दिल को जीत लिया। वो रहमतुल्लाहि आलमीन है। लोगों, तुम भी उनके साथ हो जाओ, इसी में भलाई है। तुम भी अपनी आँखों से देखो और सोचो, क्या पत्थर में बूत तुम्हारी दुआएं सुनते हैं, या वो अल्लाह जो ज़िंदा है और देखता है, जो सुनता है। अब बुढ़िया की आंखों में नफ़रत की जगह मोहब्बत और रोशनी थी। वो जो जाती औरतों को हक़ की तरफ बुलाती, उसका कल्ब अब तौहीद की गवाही से भर चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इस्लाम कभी भी जंग से नहीं फैला, बल्कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सब्र और उनके आला अखलाक से लोगों के दिलों में इस्लाम की रोशनी भर गई और रहती दुनिया तक उन्हीं के दम से इस्लाम का बोलबाला रहेगा। आपको ये इनाम अफरोज़ वाक़या कैसा लगा, तो बहारे करम कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमी लिखें, ताकि ये सदक़ाए जारिया बने। आप किस शहर से हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी लिखें, ताकि हमें आप सब की मोहब्बत और ताल्लुकात का पता चल सके। ऐसी ही मज़ीद वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं आपको ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू।